Hello students, in this lecture we will do the study of limits concept. This concept is very important in 11th and 12th class. What is limit? So first we see the definition. If x tends to a, then fx tends to l. This function is depend on this variable x and x is approaching towards a. x की वैल्यू कहाँ की ओर अप्रोच कर रही है? a की ओर. जैसे ही x a की ओर अप्रोच करेगा तो fx किस ओर अप्रोच कर रहा है? l की ओर. So how we can define in the words? We can define in the form of limit. Limit of a function at x equal to a is defined as limit x tends to a fx is equal to l. Please see how we are reading this expression. Limit x tends to a fx is equal to l, or we can say limit of function at x equal to a is equal to l. So this is the meaning of limit in mathematical definition. But how we can understand? आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और आप एप्पल परचेस करने जा रहे हैं. आप 10 kg एप्पल परचेस कर सकते हैं 1000 रुपीज़ में. अगर आपके पास 2000 रुपीज़ होते तो आप कितने एप्पल परचेस कर पाते? यूनिटरी मेथड अप्लाई तो हम लोग कितने कर पाते? 20 kg. तो जैसे जैसे हम लोग एक्स वेरिएबल जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है, परचेसिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? हाउ मच अमाउंट यू हैव. आपके पास 1000 रुपीज़ थे तो 10 kg परचेस कर पाए. 2000 है तो 20 kg परचेस का है. परचेसिंग आपकी फंक्शन हो गई और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? द अमाउंट यू हैव. सो दिस फंक्शन एंड इट डिपेंड ऑन विच वेरिएबल. सो इन द सेम वे फंक्शन रिलेशन इन फंक्शन you have already studied in 11th class as well as in 12th class. If you have not studied, please see my that lecture, relation and function. So once again I am repeating the definition of limit. If x tends to a, then fx tends to l, and it can be written as limit of a function at x equal to a, limit x tends to a, fx is equal to l, or limit at x equal to a, function fx is equal to l. How we can calculate this limit? So methods to find limit. First method, direct substitution method. Second, factorization method. Third, rationalization method. Fourth, by using some standard limits, that is by using some standard formula. तो हमें ये standard formula याद करना है. इनके proof हमारे syllabus में नहीं है. अगर आप चाहें तो prepare कर सकते हैं. Limit x tends to a, x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a is equal to n a raised to the power n minus 1. Reciprocal of it, so its result we have to do the reciprocal. हमने इसका रेसिप्रोकल करा है x माइनस ए अपॉन एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन. तो यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है उसका भी रेसिप्रोकल हमें करना रहेगा 1 अपॉन एन ए रेस टू दी पावर एन माइनस 1. तो ये दोनों फार्मूले बाय हार्ट आपको लर्न करना है. नेक्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा is equal to 1. Limit theta tends to 0 theta upon sin theta is equal to 1. Limit theta tends to 0 tan theta upon theta or theta upon tan theta, whatever function is given, its value is equal to 1. Fifth method, by the concept of LHL and RHL. What is LHL? Left hand limit. RHL right hand limit. क्या है फॉर्मूला LHL का? लिमिट x tends to a minus fx, लिमिट h tends to 0 fa minus h. RHL, लिमिट x tends to a plus fx, लिमिट h tends to 0 fa plus h. लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब हम लोग LHL और RHL निकालते हैं. If LHL is equal to RHL, then limit exists. If LHL is not equal to RHL, then limit does not exist. So when these are equal, then we are able to write it. Limit x tends to a, fx is equal to l. When LHL and RHL at a are equal, then we can write limit x tends to a, fx is equal to l. One more concept we have to prepare, algebra of a limit. Algebraic sign all are knowing, plus minus multiplication division. So limit x tends to a, f plus minus g x. So we can separate the limit sign for plus minus algebraic sign. Next, limit x tends to a, f into g x is equal to limit x tends to a, fx into limit x tends to a, gx. If it is function are individual, limit can be separated. Limit x tends to a fx upon limit x tends to a gx, where limit x tends to a gx is not equal to 0. What is the meaning of all this formula? कि हम लिमिट साइन को सेपरेट कर सकते हैं हर एक एल्जेब्रिक साइन के लिए, except whenever the for division relation when we are separating in denominator it has to be not equal to 0. अगर ये 0 हो जाएगा तो लिमिट नॉट डिफाइन हो जाएगी.
अभी हमने जितनी मेथड देखी है, विथ वन ऑफ द एग्जांपल वी विल सी ईच मेथड. फर्स्ट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. लिमिट होती क्या है? अगर आप लोगों ने लोअर क्लासेस में फंक्शंस की वैल्यू निकाली है एट एनी पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल टू √3. हम लोग करते क्या थे? एक्स की जगह जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है एक्स की, दैट वी आर सब्स्टिट्यूटेड. वही चीज़ यहाँ करना है. ये फंक्शन दे रखा है पॉलिनोमियल, वी कैन से 11th क्लास से इसका नाम बदल जाता है. इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन. हाउ इट इज़ फॉर्म? 3x² + 4x + 5. लिमिट x टेंड्स टू 1. यहाँ लिमिट किस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है? x टेंड्स टू, तो दैट इज एट विच नंबर 1. तो यहाँ पे किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है? 1 पे. तो हमें करना क्या है? x की वैल्यू जो है 1 यहाँ इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने पे क्या रिजल्ट आया है? 12. सो दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक और एग्जांपल देखते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 - x. यहाँ पे फिर से हम लोग x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2, 3 - 2 सो इज इक्वल टू 1. आप जरा प्रेजेंटेशन देखिए. यहाँ मैंने लिमिट का साइन रखा था, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करा लिमिट का साइन हटा दिया क्योंकि लिमिट का काम हो चुका है. अप टू व्हाट टाइम वी विल राइट इट? द टाइम वी आर नॉट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू. जैसे ही सब्स्टिट्यूट करा लिमिट का साइन रिमूव हो जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 0, 9. ये किस प्रकार का फंक्शन है? रिलेशन फंक्शन लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं. ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. तो यहाँ कहीं x नहीं दिख रहा है, तो हमको जो भी x की वैल्यू है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लिमिट. हम कुछ भी रखेंगे, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 9. सो दीज ऑल आर नोन एज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. पर अगर हम लोगों ने x की वैल्यू फंक्शन में रखी और फंक्शन नॉट डिफाइंड टर्म में चेंज हो गया, सो इन दैट केस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल. वी हैव टू अप्रोच फॉर द नेक्स्ट मेथड. नेक्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड. वी हैव गिवन दिस फंक्शन. अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जैसे ही रखा 4 - 4 0 हो गया. और जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइन हो जाता है. जब भी हमें लिमिट की वैल्यू रखना है तो आपको उस कंडीशन में, उस स्टेप में रखना है जब पूरा फंक्शन किस फॉर्म में चेंज हो सके? डिफाइन फॉर्म में. बट हाउ वी कैन चेंज इनटू डिफाइन फॉर्म? अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करने पे एक फैक्टर क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है व्हेन वी चेंज इनटू लोएस्ट फॉर्म. ये इस फैक्टर के कारण फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा था. तो जब भी व्हेन वी विल अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, when direct substitution method is not applicable and numerator and denominator both are polynomial. हम लोगों ने फैक्टराइज करा, जिस फैक्टर के कारण नॉट डिफाइन हो रहा था उसे रिमूव करा, एंड देन वी विल अप्लाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब जो भी मेथड करेंगे आखिरी में उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगेगा. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स फर्स्ट वी विल अप्लाई सम ऑफ द सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट ड्यू टू विच द टर्म विच मेक्स द फंक्शन नॉट डिफाइन दैट विल गेट एलिमिनेटेड और रिमूव्ड, एंड देन वी विल डू द सब्स्टिट्यूशन. और हमने जैसे ही कैंसिल कर दिया अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. व्हाट वी गॉट इट? -1/4. Second method factorization is completed. Third rationalization method. जब भी हमें सर्च की पावर दे रखी है, रूट वाली एक्सप्रेशन दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + x - √2/x. अगर यहाँ लिमिट की वैल्यू रखते हैं, लिमिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 0. डिनोमिनेटर में रखी, सो व्हेन x = 0 द एक्सप्रेशन इज चेंजेस इनटू 0/0. ऑल आर नोइंग 0/0 इज ए नॉट डिफाइंड फॉर्म. इस केस में अब हम लोगों को क्या करना रहेगा? फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो रेशनलाइजेशन करेंगे. 9th क्लास में हमने सीखा था रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. वाई वी वर डूइंग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर? क्योंकि वहाँ हमें डिवीजन करना रहता है और रेशनल नंबर का डिवीजन पॉसिबल नहीं रहता है, इसलिए हम लोग रेशनल नंबर का डिवीजन पॉसिबल नहीं रहता है, इसलिए उसे रेशनल फॉर्म में चेंज करते हैं. पर अब हमारे लिए कंसेप्ट चेंज हो जाएगा. रेशनलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. कई बार हम न्यूमरेटर का करेंगे, कई बार डिनोमिनेटर का करेंगे, कई बार दोनों का करेंगे. यहाँ पर न्यूमरेटर में रूट वाली टर्म दे रखी है तो हम न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे. रेशनलाइजेशन हाउ वी आर डूइंग? विथ अपोजिट साइन. बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज गिवन, विथ अपोजिट साइन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो हमने साइन बदला, मल्टीप्लाई करा. सो ये हियर इन न्यूमरेटर वी आर अप्लाइंग द आइडेंटिटी a + b a - b. हमारे पास आ गया 2 + x - 2. डिनोमिनेटर में आ गया x, √2 + x + √2. 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, और ये जो x नॉट डिफाइन कर रहा था दैट गेट एलिमिनेटेड, रिमूव. अब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज रेशनलाइजेशन. जहाँ रेशनलाइजेशन करके फंक्शन की लिमिट को डिफाइन फॉर्म में लाएं तो दिट इज नोन एज रेशनलाइजेशन मेथड.
जब फैक्टराइज करके लिमिट को डिफाइंड फॉर्म में लाएं, दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड. Here when we have substituted the value, we are getting 1/2√2. So our question is complete. Next concept, by using some standard formula sin theta upon theta, how we will apply this formula. जो एंगल में वैल्यू है, सेम थिंग वी वांट इन द डिनोमिनेटर ऑफ ए फंक्शन, और सेम चीज हमें लिमिट में चाहिए दैट टेंड्स टू 0, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं. तो सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल सी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एंगल में क्या दे रखा है 3x, तो डिनोमिनेटर में भी हमें क्या चाहिए 3 चाहिए. सो बाय 3 वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो वी विल गेट इट 3 इंटू साइन 3x अपॉन 3x. एल्जेब्रा ऑफ लिमिट से हम लोग लिमिट साइन सेपरेट कर सकते हैं 3 के लिए भी और इस फंक्शन के लिए भी. 3 कांस्टेंट है, अभी हम लोगों ने देखा था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट, सो 3 रिमेन्स एज इट इज. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3. सो दिस वी कैन आल्सो राइट x टेंड्स टू 0 देन 3x टेंड्स टू 0. सो द इट इज चेंज इनटू द विच फॉर्म, sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1. सो 3 इंटू 1, सो व्हाट वी विल गेट इट 3. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x इज इक्वल टू 1. सेम वे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 2x. हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में 5 चाहिए, तो हम 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रख देंगे. अगेन वंस अगेन सेम फार्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा, तो रिजल्ट क्या आ गया 5/2. आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट. नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन sin bx. लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट वी विल अप्लाई एज वेल एज स्टैंडर्ड फार्मूला वी विल अप्लाई. हम लोग साइन x अपॉन x चाहिए, इसलिए x का मल्टीप्लाई डिवाइड करा. साइन bx अपॉन bx चाहिए, इसलिए bx का मल्टीप्लाई डिवाइड करा डिनोमिनेटर में. दिस x इज कैंसिल बाय x, a अपॉन b इज कॉन्स्टेंट, वी कैन कीप आउटसाइड. लिमिट वी हैव सेपरेटेड फॉर डिवीजन रिलेशन. अब ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट 1, इट्स वैल्यू इज व्हाट 1. सो a अपॉन b, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, a अपॉन b. आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट. Next question is based on this standard formula, limit x tends to x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a and a raised to the power n minus 1. हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x raised to the power 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2. सबसे पहले 1024 को फैक्टराइज करते तो हमें क्या मिलेगा 2 raised to the power 10 एंड दिस x माइनस रिमेनिंग टर्म आर एज इट इज. अब हम लोग देख सकते हैं इट इज इन ऑफ विच फॉर्म, x raised to the power n into x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a. So here what we are getting, x raised to the power 10 minus 2 raised to the power 10, which is a 2, which is n 10. So apply the formula n, that is 10 into a, that is 2 raised to the power n minus 1, 10 minus 1. So what final result we are getting, 5120. Our question is complete. नेक्स्ट कंसेप्ट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट. यहाँ पे उन्हें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, पर एग्जाम में वो मेंशन नहीं करते हैं. आपको क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है कि LHL RHL का कंसेप्ट लगेगा कि अदर कंसेप्ट लगेंगे. हाउ टू डिसाइड इट, अगर आप जिस नंबर पे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी फंक्शन गिवन है, अगर वो नंबर 2 जगह दिखे, सो दैट टाइम एट दैट नंबर यू टू कैलकुलेट LHL एंड RHL. तो हियर वी विल अप्लाई एट 1 LHL एंड RHL कंसेप्ट. LHL एट x इक्वल टू 1 कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 1. ये शो करता है कि LHL लिमिट कैलकुलेट करें. एक ही जगह क्या दे रखा है 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 minus fx, limit h tends to 0 f a minus h 1 minus h. देन 1 माइनस एच 1 से छोटा, तो यहाँ देखिए कौन सी डेफिनेशन लगेगी फंक्शन की, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स. तो जब भी x 1 से छोटा है, सो व्हाट वी हैव टू राइट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये एफ हम रिमूव कर रहे हैं और सब्सिट्यूट कर रहे हैं फंक्शन में वैल्यू. नाउ वट एवर मेथड वी हैव सीन इन डायरेक्ट सब्सिट्यूशन मेथड, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, दैट वी विल अप्लाई. 1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर, सो डायरेक्ट सब्सिट्यूशन जनरली एप्लीकेबल. सब्सिट्यूट करा, रिजल्ट क्या है 2. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे RHL. देखिए दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे नोटेशन क्या हो गया 1 प्लस, ये एक नोटेशन है जो शो करता है कि RHL कैलकुलेट करें. लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 plus h, limit h tends to 0. Now which definition of function is applicable, x is greater than 1 plus means 1 से ज़्यादा. तो यहाँ पे 2 minus x, that is 2 minus what is x 1 plus h. डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाया, क्या रिजल्ट मिला 1. LHL 1, LHL 2 है, RHL 1 है. LHL is not equal to RHL, so limit does not exist. Our question is
complete. So whenever you are seeing at the point where we have to calculate the limit at two different places, then you have to apply LHL and RHL. अगर यहाँ पे वो बोलते हैं 5 पे कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्ट रख देते, किस जगह रख देते, x इज ग्रेटर देन 5, तो वो 5 नंबर यहाँ दिख नहीं रहा है. और वी कैन से एट ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 5 फंक्शन की सेम डेफिनेशन रहती है 2 माइनस एक्स. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्सिट्यूट कर देंगे 5, 2 माइनस 5, सो हाउ मच विल गेट इन -3. तो वहाँ कौन सी मेथड लगती है, डायरेक्ट सब्सिट्यूशन. इन दिस लेक्चर आई टुक द रिविजन of limit concept. Those who have done in 11th class, for that I made this lecture, because in 12th class continuity and differentiability, in continuity topic and differentiability we required all this concept of limits. So please revise it with few questions. I have explained all the methods. I hope all of you got it. Thank you.